اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام بس اتنے لوگ چاہتے ہیں اسلام رہے. تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہی بڑھے گا. قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ مکے میں. کہاں؟ مدینے میں. بولو یار، مدینے میں. قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ مدینے میں. آج تکیہ کے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. آج پوری دنیا میں اسلام کی روشنی موجود ہے. آج پوری دنیا میں اسلام کی چمک اور دمک موجود ہے. جنہوں نے چاہا اس کو ہم پیچھے کر دیں، جنہوں نے چاہا اس کو ہم کاٹ دیں گے، جنہوں نے چاہا کہ اسلام کو ہم پشت کر دیں گے، جنہوں نے چاہا اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے. اللہ نے ایسی توفیق بخشی. جنہوں نے چاہا کہ اسلام کو دنیا کے پردے سے ہم مٹا دیں گے، اسلام کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، مگر تاریخ آج بھی ہم کو یہ پکار کر یہ گواہی دے رہی ہے جب لوگوں نے چاہا، جس نے چاہا اسلام کو ہم مٹا دیں گے. اللہ نے انہیں ایسی توفیق بخشی کہ لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھ کر پوری دنیا کو بتا دیا اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے. تو اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پر ریاست بھائی، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان، احسان. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بے شک ہم نے انسان کو بہترین اور اچھی شکل و صورت کے ساتھ میں پیدا فرمایا. کس کے ساتھ میں؟ بہترین اور اچھی شکل و صورت کے ساتھ میں. مگر آؤ، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ لیلا لیلا کر رہا تھا. آج بھی ان نوجوانوں کی حالت یہ ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا میں لیلا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے میں لیلا لیلا کر رہا ہوں. تو میں نے پوچھ لیا کیا لیلا تم کو مل گئی؟ دیکھیں محبت کی کس سے جائے، محبت کس سے کی جائے؟ آپ سنیں، محبت کس سے کی جائے؟ میں نے کہا لیلا مل گئی؟ کہا نہیں ملی. کہا لیلا نے تباہ و برباد کر دیا. آج نگر نگر ڈگر ڈگر تکیہ کی گلیوں میں دیکھو، جگہ جگہ مجنو پھر رہے ہیں. ان سے پوچھو کیا حال ہے، کہیں گے ہمیں لیلا کی یاد ستا رہی ہے. آج یہ نوجوانوں کا عالم ہے، آج ان کے حالات اور پوزیشن ان کی یہ ہے. مگر اگر آپ مسکرا کر ریلیکس ہو گئے ہیں تو میرے جملے سن لیجئے. پھر میں آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص اور ہے، ایک مجنو، ایک دیوانہ اور ہے، وہ بھی لیلا لیلا کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی تم کو کیا پریشانی ہے، تم کو لیلا ملی کہ نہیں ملی؟ کہا مجھے لیلا تو مل گئی مگر پھر بھی لیلا نے مجھے برباد کر دیا. میں نے کہا سمجھ جا، جسے لیلا نہ ملی اس نے بھی اس کو برباد کر دیا، اور جس کو لیلا مل گئی اس کو وہ بھی برباد ہو گیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. میں نے کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا محبت ایسی کرو جو مل جائے تب بھی آباد ہو جاؤ اور نہ ملے تب بھی آباد. میں نے کہا محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو، ایسے سے محبت نہ کرو جب مل جائے تب بھی برباد، نہ ملے تب بھی برباد. میں نے کہا محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عشق کرنا ہے، اس ذات سے کرو. قاری صاحب توجہ چاہوں گا، جملے دے رہا ہوں، حفاظت کیجیے گا. میں نے کہا محبت اس سے کرو، اس ذات سے کرو، اگر مل جائے تب بھی آباد، نہ ملے تب بھی آباد. میں نے کہا اگر محبت کرنی ہے اس ذات سے کرو، اگر مل جائے تو بلال حبشی اور نہ ملے تو ویسے کرنی.
बिलाल हबशी ना मिले तो वैसे करनी, दूर रहकर मुस्तफा से इतनी मोहब्बत, दूर रहकर नबी से इतना प्यार, दूर रहकर मुस्तफा से इतना इश्क। अब आइए बहुत जल्दी आपकी तवज्जो चाहता हूं, बहुत जल्दी जल्दी सुनिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज मुसलमानों हम किस सोच और फिक्र में हैं, किस सोच में हैं। आज हम तारीख का मुताला नहीं करते हैं, आज हम इतिहास को उठाकर नहीं देखते हैं। जब आज हमारी सुबह होती है तो गुड मॉर्निंग से सुबह हो रही है, जब नाइट हो रात हो रही तो गुड नाइट से रात हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज मुसलमानों के हालात ये हैं, आज हमारी पोजीशन ये है कि जब सुबह होती है तो हमको दैनिक जागरण चाहिए, हमको अमर उजाला चाहिए, हमको कोई अखबार चाहिए, हमको न्यूज़पेपर चाहिए। आज हमारे हालात ये हो चुके हैं, आज हमारी पोजीशन ये हो चुकी है। गुड मॉर्निंग हो रहा है हमारा सुबह से, हमें अखबार चाहिए, हमें न्यूज़पेपर चाहिए, हमें पढ़ने के लिए अमर उजाला चाहिए, हमें पढ़ने के लिए सहारा पेपर चाहिए। मगर क्या तुमने कभी इतिहास को उठाकर देखा है, कभी तारीख को पढ़ा है, अपने कायद की तारीख को पढ़ा है? क्या कभी तुमने अपने लीडर की तारीख को पढ़ा है? तुम जिसे भूल रहे हो, तुम्हारे दरमियान भी एक ऐसा लीडर गुजरा है, तुम्हारे दरमियान भी एक ऐसा कायद गुजरा है, तुम्हारे दरमियान भी एक ऐसा बादशाह गुजरा है। आज होटलों पर बैठकर तुम ये चर्चा करते हो, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए। मगर एक बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जिन नेताओं की तुम बात करते हो उनके दामन इतने पाक नहीं हैं जिनके दामन की कसम खाई जा सके। मगर मुसलमानों, जिसे तुम भूल रहे हो, तुम्हारे दरमियान एक बादशाह गुजरा है जिसने 10 साल हुकूमत की है। कितने साल? 10 साल हुकूमत की। ऐसा बादशाह, ऐसा रहनुमा, ऐसा कायद जिसने 10 साल हुकूमत की। 10 साल हुकूमत के पीरियड में जिसने 1060 शहर फतह किए, जिसने 1060 शहर फतह किए, जिसके दौरे हुकूमत में 3 दिन में एक मस्जिद तामीर होती थी, जिसकी दौरे हुकूमत में 4000 मस्जिदें तामीर फरमाई गई। अब आप ये सोचे, जब उसके दौर में 4000 मस्जिदें बनी थी तो मुसलमान कितने बने हुए होंगे, मुसलमान कितने हुए होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो चलता था, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब उसने अपनी करवट, एक करवट ली है तो केसर को बर्बाद कर दिया है, दूसरी करवट ली है तो किसरा को बर्बाद कर दिया है, जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो चलता था उसके कपड़ों पर 14 पैबंद होते थे, एक पैबंद चमड़े का होता था। मगर मुसलमानों, जिस लीडर को हम भूल चुके हैं, जिस कायद को हम भूल चुके हैं, जिस रहनुमा को हम भूल चुके हैं, उस कायद की तारीख को जब एक अंग्रेज ने पढ़ा था, माइकल हार्ट ने पढ़ा था, तो माइकल हार्ट कहने पर मजबूर हो गया, अगर हजरत उमर 1 साल और दुनिया में रह जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। पूरी दुनिया में वो उमर, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी लीडर की तारीख को एक हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत और जिसने मिंबर पर खड़े होकर कहा था, आज तुम अपने मुल्क के बारे में सोचते हो कि मुल्क को कैसे तरक्की की जानिब ले जाया जाए, मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उस एक शख्सियत ने कहा था मिंबर पर खड़े होकर कि अगर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो मैं ये नहीं कहता किसी नेता की नकल करो, किसी राजा महाराजा की नकल करो, किसी बादशाह की नकल करो। अगर अपने मुल्क को तरक्कियों की जानिब ले जाना है तो मदीने के उमर की बात करो, मदीने के उमर की नकल करो।
तुम्हारा मुल्क तरक्कियों की जानिब चला जाएगा, तुम्हारा मुल्क तरक्कियों की तारीफ बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर, किसी ने कहा उमर वो है जिनकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी। मैंने कहा ये मत कहो, सूफिया लिखते हैं उमर वो है जिसकी जाहिर में हुकूमत तो है ही, मगर बातिन में भी उमर की हुकूमत है। आग पर उमर की हुकूमत, पानी पर उमर की हुकूमत, हवाओं पर उमर की हुकूमत, दरियाओं पर उमर की हुकूमत। वो उमर जिनके आदा पे शेदा सकर। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन उमर? वो उमर बैठे हैं मिंबर रसूल पर। हजरत तमीमदारी आए, आने के बाद का हुजूर वाला, सामने जो पहाड़ है वहां से ज्वालामुखी फूटी है, वो आग मदीने की जानिब बढ़ती हुई जा रही है, वो आग मदीने की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर उस जमाने में फायर ब्रिगेडर का जरिया नहीं था जिसकी वजह से आग बुझाई जा सके। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तमीमदारी फर कहते हैं ए उमर आप दुआ फरमा दीजिए ताकि आग दूर हो जाए, मदीने की जानिब आग का शोला बढ़ता जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने अपनी चादर ली है और तमीमदारी को दिया है, कहा जाओ इस चादर को ले जाओ। अब आप सोचते होंगे चादर का क्या काम है, तमीमदारी भी सोचने लगे आखिर आग आ रही है, आग का ज्वाला फूटा है, आग हम मदीने की गलियों में बढ़ती जा रही है, मगर उमर ने दुआ की बजाय में अपनी चादर को क्यों दे दिया? कहा आका इस चादर को क्या करें? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने कहा जाओ इस चादर को ले जाओ जाकर और उस आग को दिखा देना, इस चादर को देखकर वो आग पीछे भाग जाएगी। अब तमीमदारी चले हैं, हजरत उमर की चादर को लिया है, लेने के बाद में जैसे ही पहुंचे हैं आग के करीब में, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आग का काम क्या है? आग का काम यह है, आग की जद में अगर कोई आ जाए तो आग उसे जलाकर राख कर क्रिया करती है। आग का काम यह है, अगर इंसान आग की जद में आ जाए तो इंसान को आग जलाकर राख कर दिया करती है। आग का काम यह है, आग की जद में अगर कोई आ जाए तो आग उसको जलाकर राख कर दिया करती है। मगर ये उमर की चादर है, हजरत उमर की चादर। तमीम जा रहे हैं, चादर की जानिब चादर को दिखाते जाते हैं, वो आग पीछे भाग रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उस चादर को देखकर आग ऐसे भागती थी जैसे डंडे को देखकर जानवर भागा करता है। वो चादर, हजरत उमर की चादर हमको ये सबक दे रही थी, ये उमर की चादर है, उमर की चादर जो दुनिया की आग से बचा सकती है। मगर मैं डंडे की चोट पर कहता हूँ ये उमर की चादर जो दुनिया की आग से बचा सकती है, वो मदीने वाले की चादर है जो हम सुन्नियों को जहन्नम की आग से बचा। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत उमर उमर हैं। आज हम उमर की तारीख को नहीं पढ़ते। आज मुसलमान को चाहिए नावेल पढ़ने के लिए अखबार चाहिए। सुबह हुई नहीं मोबाइल में हम खबरें ढूंढने लगते हैं, हमको न्यूज़ चाहिए। मगर कभी तुमने हजरत उमर की तारीख को पढ़ा? कभी हजरत अबू बकर की सिद्दीक़ अकबर की तारीख को पढ़ा? कभी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतिहास को पढ़ा? कभी मौलाए कायनात हैदर कर्रार अल्लाह अकबर कबीरा, कभी उनके इतिहास को तुमने पढ़ा? नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बुजुर्गों की तारीख को पढ़ सके, साहबा किराम की हिस्ट्री को पढ़ सके, नबियों की तारीख को पढ़ें। आज मुसलमानों के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मुसलमान अपने लीडर को भूल चुका है, मुसलमान अपने कायद को भूल चुका है। वो उमर जिनकी आग पर भी हुकूमत है, जिनकी दरियाओं पर भी हुकूमत है, जिनकी समंदर पर भी हुकूमत है, जिनकी हवाओं पर भी हुकूमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं एक बार क्या होता है, मदीने में ज़लज़ला आ गया। क्या आया? ज़लज़ला, भूकंप, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने में ज़लज़ला आया, हजरत उमर मिंबर से उतरते हैं, जमीन पर अपना पैर रखा, कहा ए जमीन क्या मैं तेरे ऊपर अदल नहीं करता? क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? अगर मैं तेरे ऊपर इंसाफ करता हूँ तो वहीं पर ठहर जा, इतना कहना था। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़लज़ला जाता रहा, जमीन ठहर गई, भूकंप जाता रहा, जमीन ठहर गई,
زلزلہ چلا گیا، زمین ٹھہر گئی۔ آج سے 1450 سال گزر گئے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا، مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ وہ عمر جن کی ہواؤں پر بیٹھے ہیں مدینے میں، کہہ رہے ہیں یا ساریہ یا ساریہ یا جبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 مہینے کے بعد میں جب حضرت ساریہ آئے تو مولا کائنات مشکل کشا نے پوچھا، اے ساریہ یہ بتاؤ کیا تمہیں کوئی آواز آئی تھی؟ کہا ہاں مجھے حضرت عمر کی آواز آئی تھی۔ سنے عمر کی حکومت صرف ظاہری چیزوں پر نہیں ہے، باطنی چیزوں پر بھی عمر کی حکومت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی فرماتے کیا آواز آئی تھی؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں ہم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اے ساریہ اس پہاڑ کو نہ چھوڑنا، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپے ہوئے ہیں، اگر تم پہاڑ چھوڑ دو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائیں گے، دشمن تم پر غلبہ پا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے آواز پہنچی تھی جب حضرت علی نے اتنا سنا کہ حضرت عمر کی آواز کہاں ہے؟ ساریہ ملک عراق میں، مدینے سے 1300 میل کی دوری پر حضرت ساریہ ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے ساریہ سن لو، عمر ایسا حاکم بادشاہ ہے جس کی زمین پر تو حکومت ہے، دریاؤں پر بھی حکومت ہے، ہواؤں پر بھی عمر کی حکومت ہے۔ وہ عمر آخری بات سنیں، میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ وہ عمر اللہ اکبر کبیرہ، ایک بار دریائے نیل میں پانی سوکھ گیا اور عمر ایسے نہیں بنے، حضرت عمر ایسے ہی نہیں عمر بن گئے۔ وہ عمر جن کی آدھا پیشیدہ سفر اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے، اور عمر ایسے نہیں بنے۔ کیسے بنے حضرت عمر؟ چلے ہیں تلوار کو نکالا ہے، آج نہیں چھوڑیں گے، آج قتل کر ڈالیں گے محمد کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلے ہیں عمر غصے میں، کسی نے کہا عمر اپنے گھر کی جانب بھی تو دیکھ لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بہنوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے یو ٹرن لیا، واپس آئے، دروازے پر دستک دی، اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں قرآن نہیں پڑھتی ہیں، گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی ہے، آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، دینے کے بعد میں کہا کون؟ کہا میں عمر ہوں، تیرا بھائی ہوں۔ حضرت عمر کے بہنوئی نے جب دروازہ کھولا ہے تو حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑا ہے، وہ تماچے مارے، مارتے مارتے گرا دیا۔ کہا تم نے کیا کیا کہا؟ ہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر کی بہن کہنے لگی اے عمر کیا اپنی بہن کو بیوہ کر دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو پکڑا ہے، ایک تو عورت ساتھ اوپر سے نازک گال تھا۔ حضرت عمر کا ایک تماچا پڑنا تھا کہ آپ کی بہن کا گال پھٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر نے کہا اے میری بہن تو کلمہ پڑھنا چھوڑے گی کہ نہیں؟ اسلام کو چھوڑے گی کہ نہیں؟ تو حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا اے عمر سن لے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اے عمر تو میری جان تو لے سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ۔ کہا اے عمر سن لے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے نا وہی خون میری رگوں میں ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ اے عمر تو جان تو لے سکتا ہے مگر ایمان پیچھے والے بولو۔ اچھا سب سے بڑی دولت کیا ہے؟
ईमान नहीं तो सब कुछ बेकार। एक मंजिला नहीं 10 मंजिला बिल्डिंगें बना लो, 1 एकड़ नहीं 100 एकड़ जमीन ले लो, 1 4 व्हीलर नहीं 10 4 व्हीलर खड़ी कर लो, मगर अगर ईमान है तो सब कुछ है, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, कैसे भी हालात आ जाएं, कैसी भी पोजीशन आ जाए, अपने ईमान की हिफाजत करते रहना, अपने ईमान का कभी सौदा न करना। इसलिए मैंने एक जगह बोल दिया, मैंने कहा भाई साहब 5 लाख रुपए ले लीजिए, अपना ईमान दे दीजिए। अब देखें सुन्नियों का ईमान कितना मजबूत होता है, कितना यकीन पक्का होता है। मैंने कहा 5 लाख रुपए ले लीजिए, अपना ईमान दे दीजिए। कहा हजरत ऐसा है, अपने घर पे फोन कर दीजिए। मैंने कहा वो क्यों, कैसे फोन कर दूं? कहा इसलिए हम आपकी डेड बॉडी घर ले जाने के लिए तैयार हैं। अब सुने तवज्जो के साथ, मुसलमान सब कुछ तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान हरगिज़ नहीं दे सकता। और यही ईमान हमारी दौलत है, यही ईमान सब कुछ हमारा है। अगर ईमान के साथ हमारा खात्मा हो गया तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी कब्र भी कामयाब है, हमारा मैदान हश्र भी कामयाब है। और जिसकी दुनिया कामयाब हो गई, जिसकी कब्र कामयाब हो गई, जिसका मैदान हश्र कामयाब हो गया, उसके लिए ठिकाना जन्नत है। उसका ठिकाना का उमर, तू जान तो ले सकता है मगर ईमान, तवज्जो से सुन लो 2-3 मिनट की तकरीर, ईमान नहीं ले सकता। का ऐसा है क्या इस कुरान में, है क्या इस कुरान में? हम भी तो देखें, कल इस कुरान को हम भी देखें, इसके कमालात क्या हैं। आज मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता, हमारी माँ बहनें घरों में कुरान को बालाए ताक रख दिया है, मगर इतनी फुर्सत नहीं कि घर में कुरान पढ़ा जाए। इसलिए घर में नहुसत नजर आती है, घर में फिटकार बरसती हुई नजर आती है। इसलिए जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है। जिस घर में नमाजें हमारी माँ बहनें नमाजें पढ़ती हैं उस घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर ने कहा ला उस कुरान को हम भी पढ़ें। हजरत उमर की बहन ने कहा कुरान को पढ़ने के लिए पाक होना जरूरी है। कहा बहन फिर मुझे तू पाक करा दे। अब हजरत उमर की बहन पानी डालती जा रही है, दिल ही दिल में रब की बारगाह में दुआ कर रही, मौला मैंने तेरे इस्लाम की खातिर, तेरे दीन के लिए, इस्लाम की बका के लिए बहुत मार खाई है। मौला मेरे शौहर ने भी तेरे दीन के लिए, इस्लाम की बका के लिए बहुत मार खाया। मौला इसने तमाचे मारे हैं, मैंने बर्दाश्त किए हैं। इसने तमाचे मारे, मेरे गाल फटा, खून से फवारा निकला। मौला मैंने बर्दाश्त किया है तेरे इस्लाम की बका के लिए। मौला इसके हाथ धुलाना मेरा काम है, इसका दिल धुलना तेरा काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर ने पाकी हासिल की। अब कुरान को जैसे ही बहन ने खोल कर रखा है ना, अब जैसे ही बहन ने कुरान को पढ़ना शुरू किया, उमर कुरान की आयतों को सुन रहे हैं। हजरत उमर की बहन कुरान पढ़ती जा रही है, हजरत उमर कुरान सुनते जा रहे हैं। अब चले हजरत उमर एकदम उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तलवार है हाथ में। अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर एक दिन पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी, मौला इस्लाम को जरूरत है अम्र इब्न हश्शाम को या हजरत उमर को, दोनों में से एक को इस्लाम की दौलत नसीब अता फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर चले हैं, सहाबा ने देखा कि हजरत उमर बड़े गुस्से में आ रहे हैं, हाथ में तलवार है। हजरत सहाबा कहते या रसूलल्लाह, उमर बड़ा गुस्से में है, हाथ में तलवार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबा ठहर जाओ, अगर उमर का इरादा नेक है तो सीने से लगा लिया जाएगा, अगर उनके आने का इरादा गलत है तो उनकी ही तलवार से उनकी गर्दन को जुदा कर दिया जाएगा। अब चले हैं उमर। क्या होता है, जैसे ही उमर की निगाह मुस्तफा के चेहरे पे पड़ती है, तलवार छूट गई, दिल की दुनिया बदल गई, तलवार जमीन पर आ गई, मुस्तफा के चेहरे को देख लिया।
मुस्तफा के नबुव्वत वाले रुखसार को देख लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही नजर पड़ी मुस्तफा के रुख अनवर पर, तलवार छुटी जमीन पर, दिल बदल गया। अर्ज करते हैं कदमों में गिरकर, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, उमर को भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। एक निगाहे मुस्तफा ने उमर को भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। ये है उमर जिनकी शान बहुत आला है, जिनका मकाम बहुत आला है। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। अल्लाह ने अच्छी सूरत दी, ब्यूटीफुल बनाया, स्मार्ट बनाया, सुंदर बनाया, मगर हम जो हैं उसे छील छील कर बिल्कुल आलू बना रहे हैं। बाल तो देखो जैसे दुधवा नेशनल पार्क का जंगल है। किसी किसी के तो अजीब हालत, कोई के तो अनन्नास, किसी के मुर्गी नजर आ रही है, किसी का देखो लखनऊ का एयरपोर्ट नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल सूरत के साथ में पैदा फरमाया। पूरी दुनिया के हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी। कायनात में हमारे नबी जैसा खूबसूरत कोई आया ही नहीं है। कोई दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर क्या थी? दाढ़ी थी ना। दाढ़ी कटाने से अगर खूबसूरती आती, दाढ़ी छिलवाने से अगर चेहरे पर ग्लो आता ना, तो दुनिया के हसीन चेहरे पे दाढ़ी ना होती। पूरी दुनिया के हसीन चेहरे पे दाढ़ी थी, मेरे मुस्तफा के चेहरे पे दाढ़ी थी। और मेरे मुस्तफा के जैसे ना कल आया था, ना आज है, न सुबह कयामत तक हो सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलिए, अपने किरदार में नरमी पैदा कीजिए, अपने अखलाक में नरमी पैदा कीजिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाइए, अपने आप को शरीयत मुस्तफा का पाबंद बनाइए, अपने चेहरों पे सुन्नत मुस्तफा सजाइए, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाइए, अपनी माँ बहनों को दुपट्टे की तालीम दीजिए, पर्दे की तालीम दीजिए, अपने भाइयों को, अपने छोटे भाइयों से शफ़क़त के साथ पेश आइए, बड़ों के साथ में ताज़ीम के साथ पेश आइए, अपने माशरे में एक मिलजुल कर रहिए, अपने इलाके में शांति बनाकर रखिए। यही हमारी जिंदगी का उसूल है कि हम जब तक दुनिया में रहे नबी के गुलाम बनकर रहें, अब जब दुनिया से जाएं तो मुस्तफा के गुलाम बनकर जाएं, ताकि मरने के बाद ये ना हो, दुनिया ये ना कहे ये शराबी चला गया, दुनिया ये ना कहे जुआरी चला गया, दुनिया ये ना कहे कि बदकार चला गया, दुनिया ये ना कहे बुरा शख्स चला गया, दुनिया ये ना कहे ब्यास खोर चला गया, दुनिया ये ना कहे सूद खोर चला गया, बल्कि दुनिया ये कहे जाने वाला गुलाम मुस्तफा जा रहा है। और जब तुम कब्र में जाओ तो कब्र में जाओ, फरिश्ते कहें, दुनिया वाले कहें ये नबी का गुलाम है, और हूराने जन्नत कहे ये आशिक़े मुस्तफा का गुलाम बनकर आ गया है। इंशाअल्लाह आप यहाँ से कुछ सबक लेकर जाएंगे। अपने अखलाक, अपने घर के माहौल को बदले, अपनी माँ बहनों को पर्दे की तालीम दे, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाए, अपने आप को नमाजी बनाए, अपने आप को इस्लाम के साँचे में ढालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।